if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon top so that you know the next time we post. You've been doing this for a long time, no? You've been around for a very long time. This is my 15th year. Wow. Yeah. Fuck. How old are you? I'm 34. Damn. Yeah. So you started 19. I started at 19, yeah. And 15 years is 2011, huh? Yes. Damn. So you've toured a lot, boss. Yeah, I have, yeah. And you've seen a lot of generations of comic come by also. Yes, I have. I was... Does it feel like you're Dumbledore? No. I was one of the first 10, 15 comics that I knew of at least to do this in India. Nahi yaar, to be honest, like I feel like there's a lot to learn. And I don't feel as experienced as I am. And I think that that's down to the fact that मैंने टाइम वेस्ट भी ठीक ठाक किया है, ऐसी बात नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. आई वुड से कि मेरे पास 14 साल में 15 साल में 9-10 साल का एक्सपीरियंस है. बाकी 2 साल तो कोविड ही हो गया बीच में. और अगर आप स्टेज पे नहीं चढ़ रहे हो रेगुलरली तो वो एट्रोफी होगा. हाँ, तो एट्रोफी होगा. इट्स लाइक गोइंग टू द जिम. इट्स जस्ट लाइक दैट. वो तो फिर वो 2 साल तो एक्चुअली गिने भी नहीं जा सकते मुझे लगता है, क्योंकि जब तक स्टेज पे रेगुलर नहीं चढ़ रहे तब तक कोई पॉइंट नहीं है. ये है कि आई सॉ वेयर वी स्टार्टेड and I saw how much talent and ability people had, how much drive and excitement they had to just be funny, and I missed that time. क्योंकि जब से इकोनॉमिक्स आ गया इस चीज़ के अंदर, तब से लोग दे यूज स्टैंड अप एज अ मीन्स टू एन एंड, जो कि देख के मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है. वेरी टैलेंटेड पीपल आर नाउ सो फोकस्ड ऑन प्लेइंग द गेम दैट इट्स नो लॉन्गर अबाउट फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट or finding a thought that's silly or stupid or funny or shocking or whatever, you know what I mean? Like, it's become about other things for a lot of people right now, which is why people who still do this work authentically stand out so much more, you know? Which is why, like, you watch Varun Grover's special recently, you watch Upmanyu's work, you watch Shrija Chaturvedi, you watch Devesh Dikshit, you watch Shashwat Maheshwari, Prashasti Singh put out a fantastic video recently. Again, उसका भी काम बहुत अच्छा है over the years. और बहुत सारे लोग हैं, but मेरा point ये है कि इन लोगों का काम और भी शाइन इसलिए करता है क्योंकि डिस्पाइट एवरीबडी अराउंड देम प्लेइंग अ गेम, दीज गाइज आर लाइक हम नहीं खेलेंगे वो, यू नो. वो टेम्पटिंग बहुत है, वो बहुत टेम्पटिंग है. और सब लोगों को पता है कि एक मैथमेटिकल गेम खेल के तुम अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, तुम उस लेवल पे पहुंच सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इट्स जस्ट अबाउट हु चूजेस टू डू दैट एंड हु डजंट. दैट्स इट. Look, in all fairness, there's a massive bottleneck in Indian society beyond which you can consider yourself slightly safe and below which you are always going Exactly, to be stressed, yeah. right? And so if the grand lie of IIT is sold so well कि लड़के मशीन बनने के लिए कोटा में साले ठुके पड़े जा रहे हैं, तो भाई अगर एक कॉमिक या एक आर्टिस्ट, because I come from a similar school of thought more recently, artistic work, I want to satisfy myself, where do I want to be, like that kind of thinking. And then there are peers who are very commercial about this. Yeah. But boss, if it gets you to a place from 0 to 1 where you've created employment, changed lives, and you have the optionality to create more employment, because if you look at the circumstance of India, there's very few ways to make money that are not blood money also. If you think about scale of money, भाई, आप किसी भी धंधे में देखोगे ना, चोरी और गुंडागर्दी ऐसा सटली इंसर्टेड है, क्रिमिनलिटी इतना सटली इंसर्टेड है कि एक जवान आदमी घुसता है उसमें कि यार मैं अच्छा करूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर उसको रियलाइज होता है चोरी तो करनी पड़ेगी इन्वेस्टर से. एंड दैट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग बिकॉज you've designed society to take away innocence from people. That should not be the game. Dude, I completely agree. And the other thing that you said, no, about कि लोग उसको कमर्शियल एस्पेक्ट से देखते हैं और जनरेशनल वेल्थ भी बिल्ड करनी होती है, एम्प्लॉयबिलिटी भी बनानी होती है, सारी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि वो सपने मेरे नहीं है या उन लोगों के नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि एक डिल्यूजन में जीना ज़रूरी है. कोई ना कोई डिल्यूजन पाल के रखने चाहिए लाइफ में, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें मेरी करियर में अभी तक हुई हैं वो डिल्यूजनल होने की वजह से हुई है, ऐसे टाइम पे जब कोई एविडेंस नहीं थी सजेस्ट करने के लिए कि ये सब होगा. और अब मेरा डिल्यूजन ये है कि वो सारी चीज़ें होके रहेंगी, पर अब वहां तक कैसे पहुंचना है वो पूरा गेम है. जब आप ये मान के चल लो कि वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, For sure. अब पहुंचना कैसे है, लाइक सो दैट व्हेन आई लुक बैक आई फील प्राउड ऑफ हाउ आई गॉट देयर. दैट इज द होल गेम. इट्स रियली नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. चाहे भले ही 5 साल बाद पहुंचो, चाहे भले ही 10 साल बाद पहुंचो, जब पहुंचो तो ऐसा लगे कि ऑलमोस्ट हर एक कदम जो उठाया वो वैसा उठाया जिसको देख के आई कैन एटलीस्ट बी प्राउड ऑफ द इंटेंशन बिहाइंड इट. Sure. मे नॉट बी कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया या मैंने फोड़ दिया या जो भी है, बट एटलीस्ट आई कैन लुक बैक एंड से कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, मैं सही काम करने की कोशिश कर रहा था, यू नो. तो वही है. एंड द थिंग इज कि
taking one step for the wrong reason, taking 2 or 3 steps for the wrong reason, and then telling yourself कि अब इसके बाद मैं सही रास्ते पे आ जाऊंगा, वैसा कभी होता नहीं है. हाँ मुश्किल होता है, You know, वही है. हो रहा है मुश्किल नहीं मुश्किल होता है, पैसे को मना करना बहुत मुश्किल होता है आपको. एंड आई टेल यू दिस अबाउट the only person who can say no to money is a person who has money. Yes, of course. Fact of the matter is just that. Yeah. And usko you can discard that as privilege and trivialize it, but it's a strength in many cases. Yes, and it you is. can actually do massive, what's the word? I don't want to use something as aggrandizing as revolution, but you can do micro changes. Let's just put it like that. Yeah. Only because you had the ability to say no to money. I think it's a very powerful tool if exercised properly. Dude, 100%. Also, even for a person who has money, more money represents more safety mentally. Which is an Indian problem, by the way. Yes. कि हमें ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, I grew up around sons of extremely rich fathers. Like, Yeah. what is generational wealth to somebody like that? In the sense Yeah. कि अब तेरे को कभी काम नहीं करना, तू साले उसको FD में डाल के इंटरेस्ट भी खाएगा तो भी पैसा खत्म नहीं होगा. हाँ, types, right? वही. अब वो 30, 35 साल के हो गए हैं, पर वो भी फटीक में जी रहे हैं भाई. किस चीज के? यार मैं मतलब अगर मेरे पास ये नहीं रहा तो कैसे नहीं रहेगा? एग्जैक्टली सब इरेशनल है, डाउन टू द टी इरेशनल है. मैं over a couple of drinks or like a bonfire, I've gone to the fucking bottom with my bros, right? Yeah. कि तेरा डर है क्या, कहाँ चला जाएगा, कौन ले जाएगा पैसा? हाँ, और क्या? कैसे जहाँ तेरी जमीन की वैल्यू इतनी है वो गायब हो कैसे जाएगी? हाँ, वही. But the fear is so paramount. I found these guys are sometimes the most immobile and paralyzed about life, क्योंकि they have 500 crores to lose. And that's a very unique thing that people probably don't anticipate from the outside. I read this quote recently, which shook me quite a bit. Still didn't shake me enough to change my habits and become the sort of person that I should. पर मैं थोड़ा हिला तो ये पढ़ के, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा called out feel हुआ ये पढ़ के कि those who do not move do not notice their chains. And I was like, अरे यार, मैं जो सुबह you know, जिम जाना पड़ेगा. एक ही दिन खराब कर दिया मेरा. You know what I mean? But it's a matter of that. Like with a lot of privileged people that I see, deeply unhappy in their lives, have a lot of money, have the ability to do anything that they want to do, पर कर नहीं पाते क्योंकि पता नहीं कौन से intangible fear में जी रहे हैं. Precisely. हाँ, वही. Or it's a known fact to me that if I take the cross section of the high school class that I was in, and उसमें से भी if I take the creamer, the only guys who were slightly crazy are the ones who are doing things on their own. Yeah. ठीक है, and I have complete respect if you want to play safe, but as long as you are not in conflict afterwards. कि अब तेरे को ये भी लग रहा है कि यार पैसा भी है पर साले मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्या फायदा है पैसे का? हाँ, और क्या? I want to do a video called the Grand Indian Scarcity Syndrome, and this is the ubiquitous condition of the Indian population. हमें लग रहा है कि कल खत्म हो जाएगा, and मैं सरप्राइज हूँ टॉप पे भी लोगों को ही लग रहा है. हाँ यार. भाई जो आदमी रिश्वत खा के फाइल पास कर रहा है ना, वो आज रिश्वत खा ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसे लग रहा है जो भी 50 करोड़ कमाए थे पिछले साल वो खत्म ना हो जाए. हाँ, वही. साले गाड़ के आया तू उसे खेत में, तेरे जीजे के पास पड़े हुए हैं वो. अरे भाई, मुझे ऐसा लगता था आज से 5-7 साल पहले कि जब मैं इस पोजीशन में आऊंगा जिस पे मैं आज हूँ, तब तो मैं बड़ा सेफ फील करूंगा, और तब तो फिर तो मैं क्या ही कर डालूंगा. हाँ. फिर तो मैं इतना फ्री माइंड से क्रिएट करूंगा. भाई बुंड फड़ी पड़ी है. ठीक है. आज भी हाँ. तब से बहुत ज्यादा. अच्छा. हाँ, तब तो नहीं फटी पड़ी थी उतनी. हाँ. अब ऐसा लग रहा है कि अरे पता नहीं, जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और फिर और भी बनाना है, और फिर सारी बातें तो बोल दी, अब क्या बोलूं. हाँ. और लोग मेरे ट्रिक्स भी जानते हैं और ये सारी चीजें. too much thinking है ना. एक बहुत बड़ा फायदा है, पता है, जब आप अननोन हो. हाँ. और आपको पता है कि आपने इस काम को उतने साल दे दिए कि आप ठीक ठाक कर लेते हो, तो आपको पता है कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होगा कि जब आपके ट्रिक्स किसी ने नहीं देखे और उनको आप पहली बार दिखाओगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो हमने नहीं देखा. पर अब ये है कि नाउ यू हैव टू फॉलो दैट, एंड यू कांट शो द सेम ट्रिक्स अगेन बिकॉज़ दे विल बी लाइक ये साला वही करता रहता है. यू नो व्हाट आई मीन? सो यू हैव टू लेवल अप एवरी टाइम आल्सो, एंड देन यू हैव टू फाइट ऑल दीस एंजाइटीज एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि नहीं, जैसे अब तक हो गया वैसे भी आगे होता रहेगा. बट यू हैव नो प्रूफ. लाइक यू जस्ट हैव टू, कौन सा झूठ बोल के अपने आप को शांत करना है उसके ऊपर है सब कुछ. यू नो, एंड इट्स अबाउट चूजिंग अ लाई. या तो तुम अपने आप को ये झूठ बोल सकते हो कि तुम बर्बाद हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, नंगे हो जाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा. या तुम अपने आप को ये झूठ बोल दो कि तुम यार मतलब दुनिया के बेस्ट कमेडियन बन जाओगे और बहुत अमीर हो जाओगे, ये हो जाओगे. Might as well just pick the happier lie out of those two and live with that delusion, right? Like, chances are neither of those things will happen. Right, but yeah. it'll be somewhere in the middle. Chances are that there is this very famous thought experiment. I don't know who I was quoting this to, from Bertrand Russell about the Thanksgiving turkey. कि वो अगर अगस्त में एक टर्की खरीद के एक परिवार लाता है, उसको रोज खाना खिलाता है, तो टर्की को लगता है भाई मैं तो बादशाह, मेरे को तो रोज खाना घर पे आके देते हैं लोग. और वो मोटे का मोटा होता जाता है.
और 25 नवंबर की रात को टर्की को लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, क्योंकि अब तो 3 महीने से खाना खिला रहे हैं। हाँ. उसको क्या पता 26 को काट देंगे। हाँ. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट्स कमिंग एंड पीपल थिंकिंग कि दिस इज वेरी मच लाइक computers or railroads. That's the first, we've had this situation before and I used to believe that for a second. Yeah. कि यार देखो ऐसा है, जब automation आया किसी भी सेंस में तो लोगों को लगा होगा, but the scale is just different, boss. अरे भाई it's not the same thing at all. Like, और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत रूडिमेंट्री है, मेरे को ज्यादा कुछ guys, मैं बता नहीं सकता कि इस क्लिप में मैं वो सारी बातें डाल ही नहीं सकता जो उस पूरी कॉन्वर्सेशन में हुई है। इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा और हमारे साथ वक्त बिताना पड़ेगा।